The role of the Constitution and the need for the law. A constitution is a body of law, rules, laws, and principles on the basis of which a state or country is governed. It embodies the principle according to which laws are formulated. The Constitution of India is the largest written constitution in the world. It was ratified by the Constitution Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. At that time, our Constitution had 395 articles and 8 schedules. At present, it has 448 articles, 12 schedules, and 95 amendments. Why do we need a constitution? A constitution defines the fundamental nature of the political system of a country. Our constitution clearly defines the power and function of the three organs of the government: legislature, executive, and judiciary. It regulates the relationship between the government and the people. It lays down the rights and duties of the citizen of India. It makes special provision for the protecting the right and interest of the weaker section of the society. The need for laws in life. Laws are integral to the functioning of a society. A lawless state would be a breeding ground for criminal activity and social evil. Therefore, we need laws to promote us and ensure the overall safety and welfare of the people and state. The Constitution as the primary source of all laws. All laws derive their legitimacy from the Constitution. This means that the Constitution is the primary source of all our laws and provide the framework within which all laws are made and executed. Any law that goes against the spirit of democracy and enshrining the Constitution of India declare unconstitutional. Rules of law and dissent. The Constitution of India uphold the rule of law. This means that the laws of a country are binding on everyone and everybody equal before the law. No one, not even the prime minister or the president of the country, is above the law. When people disagree with a law or taken the voice against the government and they voice this disagreement is known as dissent. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आज का अध्याय है कि कानून की आवश्यकता और कानून, संविधान और कानून के बारे में पढ़ेंगे। संविधान उसे हम कहते हैं वैसे जहाँ पे नियमों और कानूनों का संग्रह होता है और जिसके आधार पे कोई राज्य या फिर देश जो है सरकार को चलाती है। भारतीय संविधान जो है विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है और इसको पूर्ण रूप से तैयार होकर यह संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गई थी और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उस समय भारतीय संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और आज के समय में भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल है और 98 अमेंडमेंट्स हैं। हमें कानून की आवश्यकता जो है निम्न रूप से ज़रूरत पड़ती है। कानून जो है किसी भी संविधान के किसी भी मौलिक प्राकृतिक अधिकार जो कि राजनीतिक तंत्रों द्वारा चलाए जाते हैं उसको निश्चित करती है। संविधान जो है साफ शक्तियों का बंटवारा भी करती है जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में है। साथ ही साथ यह सरकार और लोगों के बीच में संबंध को स्थापित करती है। साथ ही साथ यह नागरिकों को अधिकार और कार्य और कुछ उत्तरदायित्व जो है राष्ट्र के प्रति प्रदान करती है। साथ ही साथ यह समाज के कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ उनको प्रोटेक्ट करने, सुरक्षा देने के लिए कुछ अलग से प्रावधान भी किए जाते हैं जिससे वो सुरक्षित रह सके। द नीड फॉर द लॉ इन द लाइफ। हमें कानून की आवश्यकता पूर्ण रूप से कहा जाए तो समाज को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जिस समाज में कानून नहीं होती है
वो स्थान जो है दानवों सामाजिक दानवों की उत्पत्ति और असामाजिक गतिविधियों को जन्म देती है। इसलिए हमें कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि हमें अपने आप को उससे बचा सकते हैं। साथ ही साथ सभी के लिए सुरक्षा और कल्याण जो है उपलब्ध करा सकते हैं कानून की मदद से राज्य में। द कॉन्स्टिट्यूशन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लॉ, ऑल लॉज आर derived। सभी कानून जो हैं वो संविधान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं और उनको जो वैधता जो प्रदान की जाती है वो संविधान के द्वारा ही प्रदान की जाती है। बनाया भी जाता है उन्हीं की तरफ से और वैधता भी उन्हीं की तरफ से प्रदान की जाती है। अगर किसी तरह का कोई कानून जो है प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ जाता है, उसको संविधान के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। रूल्स ऑफ लॉज एंड डिसेंट। हमारा संविधान हमारा भारत में संविधान के द्वारा जो है कानून स्थापित किया गया है और उसी के अनुसार सरकार को चलाया जाता है। इसका साफ-साफ मतलब ये है कि हम सभी चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो सभी कानून के समक्ष एक समान हैं। कोई भी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो उस कानून से बढ़कर नहीं है। जब कभी भी कोई भी कानून जो है लोगों की असहमति के बिना सहमति के बिना बनाया जाता है, लोग उससे असहमत हैं और लोग जो है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, तब जो है संविधान की तरफ से उसको डिसेंट घोषित कर दिया जाता है।